راولپنڈی کے مضافاتی علاقے میں واقع مسجد میں خودکش دھماکہ، خودکش حملہ آور کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ خودکش جہنمی کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے کے نتیجے میں اب تک 12 معصوم نمازیوں کی شہادت کی اطلاع ہے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اسلام آباد دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے صدر مملکت کی تعزیت اور صبر جمیل کی دعا، زخمیوں کو جلد صحت یابی اور بہترین علاج کی ہدایت۔ کہا کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے، جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پوری قوم اس مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد دھماکے کی شدید مذمت، واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار، شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں واقعے کی مکمل تحقیقات اور ذمہ داران کی فوری تعین کی ہدایت، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم، وزیر صحت کو نگرانی کی ہدایت۔ کہا کہ ملک میں شرپسندی اور بد امنی پھیلانے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ دھماکے میں ملوث عناصر کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دل۔ اسلام آباد ازبکستان کے صدر کو اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان دینے کی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کو پاکستان کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان عطا کیا۔ یہ اعزاز دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کے پیش نظر دیا گیا ہے، جبکہ تقریب میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وفاقی وزراء نے بھی اسلام آباد میں پاکستان ازبکستان بزنس فورم کا انعقاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ازبکستان کے صدر اور وفد کو خوش آمدید۔ کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان اقتصادی تعلقات اور تجارتی روابط میں اضافہ خوش آئند ہے۔ صدر ازبکستان کے دورے سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور تاریخی تعلقات موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے نجی شعبوں کے درمیان 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کے معاہدوں کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ اسلام آباد میں پاکستان ازبکستان بزنس فورم کا انعقاد۔ صدر ازبکستان شوکت مرزایوف کا بزنس فورم سے خطاب۔ کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تعلقات کثیر الجہتی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بزنس فورم کے موقع پر طے پانے والے معاہدوں پر مؤثر عمل درآمد سے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ بزنس فورم اور دورے سے دونوں ممالک میں تجارتی تعاون بڑھے گا۔ اور اکزئی اور خیبر میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ 24 خارجیوں کو ہلاک کرنے پر فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیت، بہادری اور قربانیوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ عزم استحکام کے ویژن کے تحت دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر خراج تحسین پیش۔ کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 24 دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ خیبر پختونخوا میں امن قائم رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک کارروائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ ضلع اورکزئی اور ضلع خیبر میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر فورسز کی تعریف۔ کہا کہ یہ کارروائیاں قومی عزم اور جذبے کی عکاس ہیں۔ ملک سے انتہا پسندی کے مکمل خاتمے اور آخری دہشت گرد کے صفائی ہونے تک امن قائم رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے فورسز کی قربانی اور محنت کو عوام کے لیے قابل تقلید قرار دیا۔
बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमायां समरात। सिक्योरिटी फोर्सेस और वजीर आला बलोचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब हो गईं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, लूटमार और दीगर जराइम पेशा अनासर के गिरोह ने रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर करके हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले अनासर ने भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जमा कराया। मिराग खान चक्रानी ने शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान कर दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के एजाज में कंबोडिया की सेनेट के सदर का पुरवकार नाश्ता, दो तरफा ताल्लुकात और आलमी पार्लिमानी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कंबोडिया अगस्त से सितंबर 2026 में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। यह अहम फैसला चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुशावरत से किया गया। पाकिस्तान और कंबोडिया का पार्लिमानी सिफारतकारी और आलमी अमन के फ़रोग़ पर मुश्तरका अज़्म। ISC की मेज़बानी आलमी पार्लिमानी सतह पर पाकिस्तान की फ़ाल किरदार का एतराफ़। चेयरमैन सेनेट की कंबोडिया को इस्लामाबाद में सिफारती मिशन कायम करने की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में मुनक़िदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन ज़ैदुल नह्यान और रवांडा के वज़ीर दाखिला डॉक्टर वंसनेट बेरोटा से अहम मुलाकातें हुई। पाक UAE ताल्लुकात मजबूत बनाने और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ऑनलाइन दहशतगर्दी और माली मुआवनत की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली। मोहसिन नकवी और रवांडा के वज़ीर दाखिला के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने ACC के हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया। रात 12 बजते ही 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज हो गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने रात 12 बजे पतंग उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज किया। लाहौर के आसमान पर सितारों की जगह पतंगें सज गईं। छतों पर पतंगबाजी और हल्ला गुल्ला जारी। उड़ती और गिरती पतंगों को देखने के लिए मनचले सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत के आगाज पर लोगों की पतंग उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मरियम नवाज ने कहा कि 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगें वापस आ गई हैं। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं, हिफाजती SOPs पर अमल करें और इस बसंत को सबके लिए महफूज बनाएं। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लिबर्टी चौक का दौरा किया। शहरियों से गुफ्तगू की। मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी रॉड लगाने का कहा। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में हैं। तवील अरसे बाद बसंत मनाने वाली वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब भर में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब बसंत एंजॉय कर रहे हैं। कई बरसों के बाद लाहौर में एक बार फिर गली गली कूचा कूचा में बसंत बहार आ गई है। लाहौर की सड़कें और गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हुई हैं। पतंग और डोर महंगी होने के बावजूद शहर भर में नायाब हो चुकी है। बसंत पर पंजाब हुकूमत के इंतजामी दावे धरे के धरे रह गए। बसंत 2026 के आगाज के साथ ही लाहौर में खुशियां मातम में बदल गईं। कातिल डोर और बसंत से जुड़े मुख्तलिफ हादसात में एक नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि 3 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। सिख नहर के करीब 25 साला अली रशीद कटी पतंग उतारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा। करंट लगने से मौके पर जाँ बहक हो गया। गुलशन रावी के इलाके में 8 साला इरहा को गले पर डोर फिर गई। रावी रोड के इलाके में छत से गिरने के बाद साकिब नामी शख्स जख्मी हो गया। लोअर मॉल के इलाके में पतंग लूटते हुए 12 साला अब्दुल वाहिद जख्मी हो गया। गुलशन रावी के इलाके में 14 साला सलमान दरख्त से पतंग उतारते हुए जख्मी हुआ। डिफेंस फेज 5 में 21 साला राफे तनवीर मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी। सिंध असम्बली की मेज़बानी में बैनुल अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इख्तितामी तक़रीब से खिताब। कहा कि ये कॉन्फ्रेंस एतमाद, शमूलियत, जिद्दत और अमन के जरिए जमहूरियत को मजबूत बनाने का हकीकी एजेंडा पेश करती है। मजबूत जमहूरियत तब कायम होती है जब इदारे इंसाफ फराहम करें, खिदमात शफाफ हों, मौक़े बराबर हों और अवाम की शिकायत इज्जत के साथ सुनी जाएं। वज़ीर आला सिंध ने वफूद और मुंतज़मीन की काविशों को सराहा। कराची चार्टर जल्द अपनाने का ऐलान।
सिंध पुलिस ने अंदरूने सिंध कच्चे में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। सिंध के कच्चे में ऑपरेशन का नाम निजात मेहरान रखा गया। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो का मीट दी प्रेस से खिताब, कहा कि कच्चे के इलाकों में अगवा बराए तावान की वारदातें मामूल बन चुकी थीं। दरिया सिंध के दोनों अतराफ जंगलात की मौजूदगी के बायस जराइम पेशा अनासर ने ठिकाने बना रखे थे। हालिया ऑपरेशन के बाद जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। कम पैसों में ट्रैक्टर या लड़की का झांसा देकर अगवा बराए तावान किया जाता रहा। आईजी सिंध ने मजीद कहा कि रियासती रिट बहाल की जाएगी और डाकुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ANF की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 6 कार्रवाइयों में 7 मुल्जिमान गिरफ्तार, 60 किलो 84 ग्राम मुनशियात बरामद। बादशाह खान एयरपोर्ट पर 105 हेरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद किए गए। सियालकोट में चर्स, इफ्यून, हेरोइन और आइस बरामद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मुनशियात बरामद। तर्जुमान ANF ने कहा कि तमाम कार्रवाइयों के सिलसिले में इंसदादे मुनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से कबल ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल $1.59 फी बैरल सस्ता, कीमत $67.87 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $1.51 कमी से $63.63 फी बैरल हो गई। ट्रेडिंग सेशन के दौरान एक मौके पर दोनों आलमी बेंचमार्क की कीमतों में 3% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। और शाइनिंग इंडिया की स्याह हकीकत बेनकाब, मोदी सरकार के दावों पर स्याह दाग। भारतीय दारुल हुकूमत से रोजाना दर्जनों अफराद लापता। हिंदुस्तान टाइम्स ने रियासती मशीनरी की नाकामी का पोल खोल दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में दिल्ली से 807 अफराद लापता हुए, जिनमें 509 खवातीन और 191 कम उम्र बच्चे शामिल हैं। गुज़श्ता बरस भी दिल्ली से 24,500 से ज्यादा अफराद लापता हुए, जिनमें 60% से ज्यादा खवातीन शामिल थीं। भारतीय दारुल हुकूमत खवातीन और बच्चों के लिए गैर महफूज करार। भारत को जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात के सबब रेप कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड भी कहा जा चुका।